So hello दोस्तों, welcome back to the YouTube channel Khamakha Vlogger and welcome back again to this new road trip video. So in this video we are going to travel from Bengaluru to Gokarna. So we're going to explore coastal Karnataka this time, and this time we're going to Gokarna. And we have started from Bengaluru. Whole journey I'm going to show you how many tolls, total toll charges, and what route we are going to take, where we are stopping for breakfast, and how is this road trip, what is the road condition. Basically highway will be good, and when we will be crossing the Western Ghats, so that will be the major point of this road trip कि जो वेस्टर्न घाट्स में जो हम जो रास्ता ले रहे हैं उसमें रोड कंडीशन कैसा है वो हम डिटेल में देखने वाले हैं। बाकी इस रोड ट्रिप को स्टार्ट करते हैं बेंगलुरु से और हम लोग चलते हैं गोकर्णा। करेंटली टाइम इज़ यू कैन सी 5:18 AM और नाउ वी आर स्टार्टिंग टोटल 8 hours 46 minutes एंड 505 kilometers। अभी हम हैं बागलुरु एरिया में, सो वील हेड स्लाइटली टुवर्ड्स एयरपोर्ट एंड देन we'll join in the Mumbai or the Bengaluru Mumbai or the Bengaluru Pune highway till Haveri, and then we'll take a left towards Gokarna. देखते we'll ask locals also because last time when I was traveling to Goa ना थोड़ा गूगल मैप के हिसाब से थोड़ा रास्ता गड़बड़ हो गया था। बाकी विल आस्क लोकल्स कि कौन सा रास्ता बेस्ट होगा वेस्टर्न घाट्स को क्रॉस करने के लिए। उसके बाद हम देखते हैं कि आगे का क्या शेड्यूल है। फिलहाल 5:19 पे अपनी जर्नी स्टार्ट कर रहे हैं बेंगलुरु से। काल हरा, दुख हरा, रोग हरा, कष्ट हरा, दारिद्र हरा, नमः पार्वती पतये शिव हर हर महादेव। First toll we are approaching Huli Kunte. This toll plaza is, and yeah, so this is basically, let's see here, Rajmarg Yatra app works or not, the annual toll pass. Oh yes, it worked. So basically we are heading towards Dobuspet and then we'll head towards Tumkur, right? So we headed a bit towards airport road. उसके बाद हम ये Dobuspet वाले रोड पे आए हैं जो कि शायद ये जो हमें मिलाएगा Dobuspet पे, फिर हम जाएंगे तुमकुर के। It's 6:19 and now we are finally joining the NH48, you can see here. और अब we are heading towards तुमकुर. तुमकुर is almost 20-21 kilometers, अभी यहाँ से दूर है। इसके बाद we'll head towards Chitradurga, Davangere, and then from Haveri we are supposed to take left. देखते हैं कि by what time we are reaching. बाकी you can see traffic condition, you can see there's light traffic on the highway, and let's head towards Tumkur now. अभी हम अपने जर्नी का ना सेकेंड टोल प्लाजा पे आ गए हैं और यहाँ पे टोल चार्जेस है 25 रुपीज़। यहाँ पे टोल चार्जेस दिख रहा है मुझे 25 रुपीज़, जो कि ना हल्ली टोल प्लाजा है। So finally we are heading towards Chitradurga, or road condition after like once this highway starts the big board will come, right? Chitradurga Tumkur tollway, तो वहाँ से जो है ना रोड कंडीशन काफ़ी अच्छी है। पहले भी जब हम गोवा की तरफ जा रहे थे तो हमने जो देखा था कि रोड कंडीशन यहाँ से काफ़ी अच्छी थी, और बाकी तुमकुर तक रोड कंडीशन इज़ okay, but yeah, after this now roads will be good, and then now we are good to cruise at higher speed. So time is 7:14 AM now और हमने ऑलमोस्ट 120 किलोमीटर्स की जर्नी की है अभी तक। 7:15 इज़ द टाइम, ऑलमोस्ट 5:15 में स्टार्ट, सो 2 hour वी आर कवरिंग 120 किलोमीटर्स अप्रॉक्स। एंड देन यहाँ पे ना थोड़ा सा मुझे जाम देखने को मिल रहा है। वाई? बिकॉज देयर इज सम ट्रैफिक हेयर विच आई कैन सी। सो बाकी यहाँ से निकलते हैं और ये आप देख सकते हैं यहाँ पे लेफ्ट में ज़रा देखिए आप कितनी गाड़ियों की लाइन लगी हुई है, और ट्रक वगैरह भी काफ़ी भीड़ है इस टोल प्लाजा पे। लास्ट टाइम जब गोवा जाते तो इतनी भीड़ नहीं मिली थी यहाँ पे, लेकिन अभी एक दो उन्होंने लेन्स भी बंद कर रखा है। दैट इज़ द मेन प्रॉब्लम। दे शुड हैव ओपन ऑल द लेन्स सीइंग द ट्रैफिक, बट आई डोंट नो व्हाट इज़ द मैनेजमेंट ऑफ दिस टोल प्लाजा। खैर whatever is there, this is the third toll plaza and total toll is 620. I am not going to tell individually कि कितने टोल का कितना है। Total I saw on Google Map on my route, so total toll charges was 650 rupees. The time is 7:30 और we are stopping for breakfast now at A2B. We started feeling hungry, so we thought of stopping here only. This see lot of vehicles are there here. यहाँ पे A2B है और भीड़ भी काफ़ी है, तो I think कि हमें मेन रोड पे ही पार्किंग करना पड़ेगा। पार्किंग फॉर A2B कस्टमर का यहाँ पे पार्किंग है, देखते हैं वहाँ पे पार्किंग तो कराया जा रहा है। इधर ही लगा देता हूँ भाई। और यहाँ पे A2B फुल है, अभी आप देख सकते हैं A2B में काफ़ी भीड़ दिख रही है मुझे। तो फिलहाल यहाँ पे गाड़ी पार्क कर देते हैं और चलते हैं A2B में, ब्रेकफास्ट करते हैं
हम अभी पहुँचे सिरा। सो यू कैन सी कितनी सारी व्हीकल्स यहाँ पे लगी हुई है एंड वी आर फाइनली स्टॉप्ड फॉर ब्रेकफास्ट। हियर इज़ आवर कार और A2B एट सिरा। तो फिलहाल A2B में हम बैठ गए ब्रेकफास्ट करने के लिए और देखते हैं कि व्हाट ऑल वी हैव ऑर्डर्ड इन द ब्रेकफास्ट एंड टेस्ट वाइज रिव्यू वाइज विल सी हाउ इज़ द टेस्ट, कॉस्टिंग वगैरह वी आर गोइंग टू सी इन डिटेल। और बाकी A2B में काफ़ी भीड़ थी यार, जगह लेने के लिए भी ना हमें वेट करना पड़ा। बाकी आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने वड़ा लिया है और ये क्या बटन इडली है और इडली वड़ा कॉम्बो है, फिर वड़ा है। तो ये सब कुछ हमने साथ में डोसा वगैरह भी हमने ऑर्डर किया है। देखते हैं टेस्ट वगैरह कैसा है, टेस्ट करके आपको बताऊंगा, रिव्यू दूंगा। और बाकी 7:30 अप्रॉक्स वी हैव स्टॉप और देखते हैं यहाँ से हम कब निकलते हैं और बाकी कौन से स्टॉप्स लेते हैं। बाकी वॉशरूम वगैरह यहाँ पे साफ़ सुथरा है, तो इट्स गुड इफ यू आर स्टॉपिंग एट सिरा एट A2B, इट्स अ गुड ऑप्शन। तो अभी हमने ना ब्रेकफास्ट अपना कंप्लीट कर लिया है A2B अद्यार आनंदा भवन जो कि सिरा में पड़ता है एंड नाउ विल बी कंटिन्यूइंग आवर जर्नी फर्दर। सो देखते हैं व्हाट टाइम वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम हियर एंड जो इनिशियल जो टाइम था वो 2 बजे का था जब व्हेन वी स्टार्टेड फ्रॉम बेंगलुरु एंड अभी देखते हैं कि वो 2 से जो टाइम है कितना बढ़ गया। बाकी इसके बाद वी विल ट्राई टू कवर एज मच एज वी कैन एंड देन विल कंटिन्यू आवर जर्नी टुवर्ड्स वेस्टर्न घाट। क्योंकि अभी हाईवे तक तो इट विल बी गुड बट वंस वी हेड लेफ्ट टुवर्ड्स द वेस्टर्न घाट्स ना उस टाइम पर रोड थोड़ी ख़राब मिलेगी और उसके बाद ट्रक्स वगैरह भी काफ़ी होते हैं वेस्टर्न घाट्स में, तो थोड़ा जो है ना स्पीड स्लो हो जाती है, एवरेज स्पीड थोड़ी स्लो हो जाती है। तो वो भी हम डिटेल में देखने वाले हैं इस ब्लॉग के अंदर। बाकी चलिए यहाँ से ब्रेकफास्ट वगैरह तो अच्छा था A2B अद्यार आनंदा भवन। लास्ट टाइम वी स्टॉप्ड एट दावनगेरे बट दिस टाइम वी वर बिट लेट सो वी स्टॉप्ड एट सिरा ओनली। So now we are starting again. Time is 8:23 and we have completed our breakfast at Adyar Ananda Bhavan at Sira. 2:43 is now arrival, means 43 minutes more is added now. 6 hours more is remaining, 360 kilometers more. So now let's start from Adyar Ananda Bhavan, Sira. Finally we have started from Sira and यहाँ पे आप देख सकते हैं queue of vehicles, बहुत सारी गाड़ियाँ यहाँ पे लगी हुई है यार। रोड के किनारे भी इन्होंने पार्किंग कर दी। तो अद्यार आनंदा भवन पे it was fully crowded and to get seat also we have waited for 5 minutes, then we got seat and now finally we have started from here. Let's see next stop where we are trekking और इसके बाद क्या टोल वगैरह है, रोड हम कौन से रूट से हम जाते हैं टुवर्ड्स गोकर्णा। So finally time is 8:55 and we are crossing Guilalu toll plaza and I think this is the 4th or 5th toll plaza. I'm a bit confused here. तो भाई यहाँ पे टोल गेट ओके, यहाँ पे टोल पता नहीं यार बंद है कि क्या है, पर दिस इज द गुइलालू। इसके बाद आई थिंक हेब्बालू टोल प्लाजा विल बी द 5th और द 6th टोल प्लाजा, आई एम नॉट श्योर। बट हाँ, टोल चार्जेस आई एम नॉट टेलिंग क्योंकि पीपल आर सेइंग कि आप टोल बता रहे हो, चार्जेस बता रहे हो, कोई नीड नहीं है। बाकी अभी तक का रोड कंडीशन तो अच्छा है, आप जितना कवर कर सकते हैं ना इधर, जब तक हम वेस्टर्न घाट्स के लेफ्ट नहीं लेंगे इस हाईवे से जो कि है पुणे मुंबई और पुणे और द बेंगलोर पुणे और द बेंगलोर मुंबई हाईवे जिसको कहते हैं, जब तक इस पे है आप जितना कवर कर सकते हैं कर लो, क्योंकि उसके बाद तो रोड कंडीशन जो 3-4 घंटे लास्ट के होते हैं ना भाई, वो किलोमीटर्स कम होता है और टाइम ज़्यादा हो जाता है, जस्ट रिवर्स हो जाता है। तो लेट्स सी, बाकी अभी तक का रोड कंडीशन तो ठीक है, हाईवे पे ट्रैफिक वगैरह इट्स ओके। गुइलालू टोल प्लाजा पे क्राउड बिल्कुल नहीं मिला तुरंत क्रॉस करके। बाकी बेंगलोर की तरफ जो टोल प्लाजा हमें मिल रहा था ना, वहाँ पे थोड़ा हमें ट्रैफिक देखने को मिल रहा था। Finally we are approaching Hebbalu toll plaza. I think this is the 5th toll plaza, count is 5th one. So now this is Hebbalu toll plaza and distance we have covered approx 260 plus kilometers we have covered till date. We have covered till now and here also my annual toll pass will work. So yeah, whatever toll is coming, so सब कुछ जो है ना मेरे एनुअल पास से डिडक्ट हो रहा है। तो यहाँ पे टोल का तो हमें कोई चार्ज नहीं देगा, मेरे पास एनुअल टोल पास है जो कि 3000 में आपको 200 टोल पासेस देता है पर ईयर। आई थिंक 3000 से तो आप बहुत ज़्यादा, अगर आप रेगुलर रोड ट्रिप्स करते हो ना तो एनुअल टोल पास ले लो भाई, क्योंकि एनुअल टोल पास के बहुत सारे बेनिफिट, आपको बहुत ज़्यादा पैसे आपको बचने वाले हैं। और हुबली अभी 169 किलोमीटर है, हेब्बाल यहाँ पे भी हेब्बाल है भाई, और हेब्बाल यहाँ पे 1 किलोमीटर है, हुबली इज़ 169। वी आर currently heading towards Davangere. So time is currently 9:55 and we are passing Davangere, like crossing Davangere. और Davangere में people stop for Beni Dosa and last time I stopped at Davangere only when I was traveling towards Goa, but this time we had breakfast in Sira only, so that's why we are skipping Davangere and 70 more kilometers to Haveri.
हाईवे से एग्जिट ले रहे हैं, आप देख सकते हैं, एंड इट्स हावेरी. सो गूगल मैप इज शोइंग बाय हावेरी. बाकी अभी विल टेक एग्जिट फ्रॉम हेयर. टाइम इज 10:52 नाउ, एंड नाउ यू कैन सी द रोड कंडीशन. आई डाउट कि आगे रोड अच्छा होगा, क्योंकि बिकॉज इन द मॉनिटर यू कैन सी हेयर, इधर यू कैन सी हेयर 154 किलोमीटर्स अप्रॉक्स 4 आवर्स. सो यू कैन सी एवरेज स्पीड अब कितनी बेकार होने वाली है भाई. और time 10:52, we have covered approx 350 kilometers, 150 more to go. Haveli is right, Hanagal and Sirsi. So from here right, यहाँ से है ना, right है यहाँ से आपको हवेली, और हम अभी लेफ्ट की तरफ जा रहे हैं टुवर्ड्स आपको गो करना. So yeah, here we took, यहाँ पे फ्रूट्स वगैरह भी काफ़ी सारा मिल रहा है यार. और इधर से अब हम लोग अप्रॉक्स 153 किलोमीटर्स दिखा रहे हैं यहाँ से, और हमारा जर्नी टुवर्ड्स गो करना. बाकी हमने फ्यूल एक बार लिया है, और अभी भी फ्यूल टैंक में कैपेसिटी, फ्यूल टैंक में अभी भी माइलेज आ रहा है कि हमारा किलोमीटर्स काफ़ी है, तो अभी फ्यूल लेने का ज़रूरत नहीं है. हाफ टैंक बचा तो आराम से वी कैन क्रॉस द घाट सेक्शन एंड देन वी विल रीच गो करना. देखते हैं कितने बजे फाइनली वी आर रीचिंग गो करना, एंड वी आर स्टॉपिंग फॉर लंच और नॉट. एवरीथिंग नाउ वी आर गोइंग टू सी इन डिटेल एंड ऑल्सो अबाउट द रोड कंडीशन. 18 kilometers more to go. This is the journey a bit, or road condition you can see. Road now we have got like a bit potholes वाला road, और road की condition थोड़ी अच्छी नहीं है. बाकी ये थोड़ा मोड़ा ही stretch मिल रहा है, मतलब अभी आगे देखिए वहाँ से थोड़े आगे से road की condition फिर सही है. मतलब ये 1 किलोमीटर के लगभग थोड़ा stretch हमें मिला, where road condition was not that good. अभी we'll see like 118 more kilometers to go. Google map is showing orange. It means road is somewhere not in good condition. So guys, journey update, 110 more kilometers to go. Road condition is not good, right? मतलब थोड़े थोड़े अच्छे रोड के पैचेस हैं, फिर ख़राब रोड आ जा रही है. देखिए like this, now the road is good. So after few kilometers only again road condition भी बहुत ख़राब हो जाएगी. So वही चीज़ है, you have to take in mind when you are coming on this route कि road condition after that highway is not good. So be well prepared, start early from Bangalore, I would like to say. Or if you are planning to reach early like 1 or 2 p.m, by lunch time if you want to reach, then you have to start Bangalore 3-4 max. If you're delaying, then obviously it will take more time. बाकी traffic condition on this route is good, ठीक है, ट्रक्स वगैरह है, गाड़ी वगैरह है, लेकिन road condition is not that good. So road condition you can see currently, it's pure dust. This road is under construction, and you can see the road condition, it's pure dusty road. And last like 90 kilometers is remaining, and still we are seeing very bad roads now, although it is under construction. But yeah, it's full muddy road, and network is okay, but sometimes like the Airtel network is not working. So in that case you don't have to worry, क्योंकि रास्ता ना it's straight. So guys, journey update, मैंने आपको बताया कि रोड कंडीशन वगैरह अच्छा नहीं था, पर once we cross the Sirsi Medical College ना, after that you can see the road is good and we are able to cruise like above 50-60. Why? Because now road is in good condition. Now from here go Karna is 56 km. I just saw the signboard, or back you can see the road condition. Till Sirsi town road is not good. Baki Sirsi I think is a big town, not a big town, but I guess it's a good decent town in Karnataka. So uske baad road condition we are seeing is good condition. Now this is some ghat section we are crossing, and after this we will be reaching the other side of the western ghats, that is the Konkan region, or I can say the Karnataka's coastal region, and then we will reach Gokarna. Till now the roads are in good condition. Let's see आगे का क्या सीन रहता है. बाकी
अभी हम कुछ थोड़ा टाइम हम रुक गए थे बीच में, वाई बिकॉज टू टेक सम ड्रोन शॉट्स एंड ऑल, वी स्पेंड सम हाफ एन आवर 45 minutes. So as of now time is 1:42, right? So we'll be reaching by 3:30 because we took ample number of stops in our way. It is not like we were hurrying up to reach Gokarna, right? क्योंकि हमें अभी जाके गोकर्णा में कुछ घूम तो हम पाएंगे नहीं, तो we are planning simply we'll go on the beach itself. So that is the whole plan. बाकी if you're planning, so last 100-120 kilometers can be painful but not so much painful, like you have to think about it, right? So चलिए enjoy करते हैं. सामने व्यू दिखाता हूँ. सामने you can see the mountains also. So this is basically the Ghat section we are crossing, and once we cross the Ghat section we'll be reaching the other side. So time is now 2:06 p.m. and somewhere we have stopped in the Ghat section, and you can see Gokarna is 42 kilometers from this point. Karwar is 81, Panjim is 190, Murdeshwar is 70 and Kumta is 25. So now approx 40 more kilometers to go for Gokarna. So finally quick journey update ये है कि finally we have crossed that Ghat section वाला खराब road and now we have come on the highway. So I think this is Mangalore Goa highway, I think, and this road is very good, and we came to this highway when like 20-26 kilometer was remaining. So last के 20-26 kilometer के लिए हम लोग आ चुके हैं इस हाईवे पे. बाकी रोड एक्सपीरियंस उधर का तो थोड़ी ख़राब रोड मिली, बट हाँ वी आर एबल टू come here by 3. It's 2:42 only. Means we'll be able to stay, like reach our stay by 3:25, 3:30. So journey experience is till now was good. ठीक है. Road, I know road condition was not that good, but yeah, in the last stretch, but again for few kilometers we have got the good highway wala road. So that's how the journey was. I hope you have also enjoyed. So yeah, finally it's 3:15 in the noon and we have finally reached on our beach resort at Gokarna. So this is at the Patang beach resort. Beach resort seems to be okayish. ठीक है. बाकी cost वगैरह it's double triple they are charging because this is the year end. And let me show you the view from this resort. Basically इनका private beach है, तो सामने भाई साहब beach view मुझे दिख रहा है यहाँ से, पर मैं थोड़े टाइम में दिखाता हूँ. पहले एक बार जाके रूम देख लेते हैं. आपको रूम टूर देता हूँ. ये कुछ ऐसा यहाँ पे बेड वगैरह है, फ़ैन दिया हुआ है, चार्जिंग पॉइंट है, इनका वाईफाई भी आप देख सकते हैं. पतंग 456 एट द रेट. और यहाँ पे हम 4 फ्रेंड्स हैं, तो फ्रेंड्स के हिसाब से ना ये रिजॉर्ट सही है. बाकी अगर आप कपल वगैरह है तो मैं कमेंट नहीं करूँगा. आप रूम की क्वालिटी वगैरह देख सकते हैं यहाँ पे. और इधर से इनका वॉशरूम है, एक वॉश मशीन दिया है. वॉशरूम वगैरह क्लीननेस के मामले में तो ठीक है. और बाकी टॉवल वगैरह आपको देंगे. ठीक है. टॉवल, वाटर बॉटल, सोप वगैरह. और बाकी एक बार देख लेते हैं कॉस्टिंग. रवि कितना पैसा दिया? टोटल 10,000. सो मतलब यू कैन एज्यूम 1250 समथिंग पर डे पर पर्सन का हिसाब है. बाकी फॉर कमिंग इन ऑफ सीजन ना तो 500 पर पर्सन में भी ये लोग कर देते हैं. लेकिन इस टाइम सिंस इट्स ईयर एंड, तो भाई 500 में तो नहीं होने वाला, जस्ट डबल से भी ज़्यादा, राइट. वी हैव पेड 2.5 टाइम्स एक्चुअली. सो 1250 हमने दिया पर पर्सन पर डे का. हम 2 दिन यहाँ रुकने वाले. और बाकी बीच वगैरह का मैं आपको व्यू एक बार दिखा देता हूँ. तो फाइनली वी आर एट द पतंग बीच और हमारा रिजॉर्ट मैंने आपको दिखाई दिया स्टे वगैरह. और सामने में ये बीच है. दैट्स हाउ ओवरऑल द स्टे इज़. यहाँ पे इनका एक रेस्टोरेंट वगैरह है, उधर में इनका रेस्टोरेंट है. यहाँ पे खाना वाना ये लोग सर्व कर दे रहे हैं. बाकी एवरेज सही रिजॉर्ट है, ज़्यादा कुछ मैं खास तो नहीं बोलूँगा इस रिजॉर्ट को. और आई होप, और बाकी आज के टूर में हम कहीं नहीं जाने वाले. टुमारो विल सी वेयर वी आर गोइंग और वी आर नॉट गोइंग, because this is year end, so Gokarna is also very crowded. We'll see where we have to go, but as of now I haven't decided anything. For today we want to stay here only because बहुत ज़्यादा टायर्ड हो गए हम सभी लोग, क्योंकि लगभग 10-11 आवर्स की जर्नी रही हमारी बैंगलोर से, रोड ट्रिप रही. बाकी आई होप कि यू हैव एंजॉयड दिस व्लॉग, और व्लॉग अच्छा लगा तो मेक श्योर चैनल को लाइक, वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ऐसे और व्लॉग्स देखने के लिए. मिलेंगे किसी और ट्रैवल व्लॉग के साथ. तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और अपने परिवार का ख्याल रखिए. बाय बाय एंड जय हिंद.